Good morning, dear all students of class 12 Commerce. My name is Dr. Indermal Goyal. Today we will discuss about the basic concept of joint venture business. It is one of the important topic related to 12th class, and joint venture is one of the special फॉर्म ऑफ बिजनेस. हिंदी में इसे बोलते हैं संयुक्त साहस. व्यावसायिक संगठन का एक विशिष्ट स्वरूप है संयुक्त साहस. There are so many forms of business organization like sole trading concern, partnership firm, company, and joint venture. Joint venture is distinct from all other forms of business organization. As the name indicates, a venture, an economic activity which is started by a small group of people so as to carry on their business for earning their life and to serve to the society, to provide a special goods or service to the community and to earn the profit for their own sake. Joint venture is similar to business. हिंदी में बोलते संयुक्त साहस. When two or more than two persons work together for earning their life and they start a business which is specific, which may be specific on the basis of the nature of work, which may be specific based on the time. So we can say that joint venture is a short-term partnership which will come to an end on achievement of a predetermined goal, completion of a particular task, or on expiry of a specific stipulated time period. संयुक्त साहस एक व्यावसायिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जिसे हम एक अल्पकालीन साझेदारी कह सकते हैं, जो कि किसी कार्य के पूरा हो जाने पर, किसी उद्देश्य के पूरा हो जाने पर अथवा कोई पूर्व निर्धारित समय के समाप्त हो जाने पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और उनके अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाएंगे और सारे जो को वेंचरर हैं उनको फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया जाएगा. तो जॉइंट वेंचर का बिजनेस कौन लोग करते हैं? जॉइंट वेंचर के अंतर्गत किस तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं? Some people are very courageous. Some people are not interested to continue a particular job for long time. They are extraordinary and they have high risk bearing capacity. कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक ही काम करना, लगातार काम, एक ही प्रकृति का काम करना पसंद नहीं होता, जो अलग अलग लोगों से के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का व्यवसाय करना चाहते हैं, कम समय में अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, जिनमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो अनसर्टेनिटी को फेस करते हैं. तो ऐसे व्यक्ति साहसी कहलाते हैं और उनके द्वारा जो बिजनेस किया जाता है उसे जॉइंट वेंचर बिजनेस कहा जाता है. और जो लोग मिलके काम करते हैं उनको को वेंचरर्स कहा जाता है. तो संयुक्त साहस भी व्यवसाय का एक विशिष्ट स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई एक विशिष्ट कार्य एक विशिष्ट समय के लिए करना आपस में तय करते हैं और उसके बाद में वो व्यवसाय उनका उद्देश्य पूरा हो जाने पर या पूर्व निर्धारित समय के व्यतीत हो जाने पर उनका व्यवसाय स्वतः ही बंद कर दिया जाता है, फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है. तो
जॉइंट वेंचर करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, तो मिनिमम तो 2 चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? मैक्सिमम नंबर कितना भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। तो दिस kind of business is similar to partnership, but you know, in case of partnership there are 2 minimum member and maximum member may be 50. There is a separate act to regulate and control partnership business in India, and you know what is that partnership act? The Partnership Act 1932 govern all partnership business in India wherever the people have started partnership without making any agreement. So there may be specific agreement and there must be specific agreement in case of partnership, but in case of joint venture they have only mutual understanding. They may have their legislation, they may have their deed, and sometimes they can enter into joint venture business without any deed. So, you know, there are 2 basic source of income. There are 2 source of livelihood in the life of the human being. हर व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई अपना पूरा करके, अध्ययन पूरा करके पैसा कमाना होता है, काम करना होता है, और जो क्या काम करेंगे वो 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो होता है बिजनेस, दूसरा होता है नौकरी। जो लोग बिजनेस करते हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे एस्टैब्लिश देयर ओन बिजनेस, दे आर देयर ओन मैनेजर, अकाउंटेंट, एंड देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द इनकम ऑफ द बिजनेस, दे आर एज्यूमिंग द रिस्क। जैसे अगर कोई व्यक्ति कपड़े का व्यवसाय शुरू करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करता है, तो एक बार जो आप बिजनेस शुरू करते हैं आप उसी बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक थ्रू आउट द लाइफ उस बिजनेस को करते हैं, चाहे सोल ट्रेडिंग के रूप में करें और चाहे आप पार्टनरशिप फर्म में करें। लेकिन जो जॉइंट वेंचर बिजनेस करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, इनका तो कोई बिजनेस निश्चित नहीं होता है, कौन से व्यक्ति के साथ कब कौन सा बिजनेस करते हैं ये भी निश्चित नहीं होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्क बियर करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए इनको साहसी कहा जाता है। क्योंकि 2, 3, 4, 5, 10 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, इसलिए इनका नाम संयुक्त साहसी होता है। इनका जो है ना आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, इनके लिए कोई एक्ट नहीं है, मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो अब ये बताइए जॉइंट वेंचर का बिजनेस है ना वो किस तरह के प्रोडक्ट के लिए, किस तरह के कार्यों के लिए होता है। तो ऐसा एग्जाम में प्राय पूछा जाता है, व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। तो इसमें जैसे अंडरराइटिंग ऑफ द शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी, कोई सार्वजनिक कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन करती है तो वो अपने अंशों का अभिगोपन करा सकती है, क्योंकि एज पर कंपनी लॉ 90% ऑफ द शेयर इशू शुड हैव बीन सब्सक्राइब्ड विदिन 2 or 3 days of subscription. If not, then the whole activity to bring a company to existence will be null and void. इसलिए अंडरराइटिंग ऑफ शेयर का काम 4-5 लोग मिलकर फाइनेंस कर सकते हैं, और अगर एक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो दे विल कंट्रीब्यूट एंड द शेयर विल बी इशूड एंड अलॉटेड टू द पब्लिक. They ensure the issue of share of the company and they get commission 1 or 2% commission on the whole amount of issue price. तो ये अंडरराइटिंग ऑफ शेयर का काम है. जॉइंट वेंचर हो जाता 2-3 दिन में पता लग जाता है कि आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, कितने शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे, और जो शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे तो आप बिजनेस मार्केट में बेच सकते हैं और आपका कमीशन तो मिलेगा ही, तो वो आपकी इनकम श्योर हो जाती है. ऐसे ही जैसे कोई एक बड़ा लैंड एरिया खरीदकर उसको सिस्टमेटिक प्लॉट्स बनाकर लैंड डेवलपमेंट करके प्लॉट एरिया कॉलोनी डेवलप करके उसको बेचना. तो अगर आप एक लार्ज पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं एंड उसके प्लॉट्स में उसको सब डिवाइड करके
सिस्टमेटिक बना देते हैं, रोड्स मैप पूरा प्लान चॉकआउट करके फिर सेल करते हैं, तो ये भी काम आप 4-6 महीने में कर सकते हैं, साल भर में कर लेते हैं, तो ये भी एक बड़ा जॉइंट वेंचर बिजनेस हो जाता है और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग सीजनल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे वुलन गारमेंट है या कोई भी ऐसा जो फेस्टिवल सीजन पे जो काम आने वाले प्रोडक्ट है उनको खरीदना और बेचना। वो बल्क क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे खरीद लेते हैं और फिर उसको विद इन फ्यू डेज मार्केट में बेचकर और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी बिजनेस विच आर कंडक्टेड थ्रू द जॉइंट वेंचर। तो संयुक्त साहस एक ऐसा विशिष्ट प्रकृति का व्यवहार है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी विशिष्ट कार्य को विशिष्ट समय अवधि के लिए करते हैं और उस व्यवसाय में होने वाला लाभ आपस में बांट लेते हैं। तो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द जॉइंट वेंचर वी कैन डिस्कवर द फॉलोइंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का विशेषताएं क्या है? पहला, 2 और मोर देन 2 पर्सन। अगर आप संयुक्त साहस व्यवसाय की बात करते हैं तो उसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे और वो मिलकर बिजनेस करेंगे, तभी वो संयुक्त साहस कहलाएगा। अकेला व्यक्ति का कोई संयुक्त साहस नहीं कहलाता। दूसरा है स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी संयुक्त साहस बिजनेस में वो तय कर लेते हैं हम ये काम लगातार 2 साल तक करेंगे या 1 साल तक करेंगे या 6 महीने तक करेंगे। टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है और उस टाइम के पूरा होने के बाद में उनके पास जो भी माल बच जाता है वो आपस में बांट लेते हैं और बिजनेस को खत्म करते हैं। तो ये टाइम स्पेसिफिक हो गया। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा कि भाई कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर बेचना है या प्लॉट्स जो जमीन खरीद के प्लॉट बनाकर बेचना है या कोई सीजनल प्रोडक्ट्स को खरीद कर बेचना है। फेस्टिवल सीजन पे बेस्ड कोई प्रोडक्ट है वो खरीद कर 10 to 50 डेज में 20 डेज में बेच दिया और फिर बिजनेस खत्म किया और फिर कोई नया बिजनेस नए व्यक्ति के साथ नए वस्तु के साथ किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो ऐसा व्यवसाय करते हैं उनको साहसी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नो स्पेसिफिक नेम। संयुक्त साहस एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है। एक कार्य के पूरा होते ही समय के पूरा होते ही बंद कर दी जाती है, इसलिए इसका कोई विशिष्ट नाम नहीं होता। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या जो पार्टनरशिप में तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है एंड ऑल पार्टनर आर बाउंड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। बट यहाँ जो जॉइंट वेंचर बिजनेस है वो आपस में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। तो द फीचर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ और सहमति। Next है no specific acts. As I have mentioned earlier that there is a specific act for partnership, that is Partnership Act 1932. But for joint venture there is no specific act. So they have their own rules and they manage the business as per their mutual understanding. Next है multiplicity of business. संयुक्त साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति एक साथ कई लोगों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग समय के लिए एक साथ बिजनेस कर सकता है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बिजनेस। तो पर्सन हु वर्क एज ए जॉइंट वेंचर बिजनेस एज ए को वेंचरर हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ बिजनेस। दे डील्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स in different time period depending on the season and the requirement of the people. Their object is to earn profits. Multiplicity of co-venture यानी कि यहाँ जो संयुक्त साहसी होते हैं ना वो ए का बिजनेस बी के साथ में भी हो सकता है, ए का बिजनेस बी के साथ में भी हो सकता है, ए का बिजनेस एक्स के साथ में भी हो सकता है। यानी कि एक ही समय पर एक व्यक्ति कई अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बिजनेस अलग अलग समय के लिए और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए करता है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बिजनेस भी है एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ को-वेंचरर भी है। किसी के साथ कोई लॉन्ग टाइम तक बंधा हुआ नहीं है और वो अपनी इच्छा से बिजनेस जब चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंसेंट से बंद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ ये जरूर है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस रेशियो में बांटेंगे वो आपस में तय कर लेते हैं कि भी प्रॉफिट जो भी होगा आधा आधा होगा या 1/4 होगा। अगर 4 मेंबर है तो ये उसके लिए उनकी पहले से वो तय कर लेते हैं। फिर शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। तो
joint venture is a short-term partnership which comes to an end on achievement of a predetermined goal, completion of a particular task and expiry of stipulated time. तो संयुक्त साहस एक अल्पकालीन साझेदारी है जो एक निश्चित लक्ष्य के पूरा होने पर, निश्चित कार्य के पूरा होने पर और निश्चित समय के पूरा होते ही स्वतः ही बंद कर दी जाती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के लिए भी लेखा करना जरूरी है, बिकॉज वेयर एवर द पीपल वर्क टुगेदर, wherever money is involved, it is necessary to keep proper record of each and every rupee received and paid on behalf of the business. तो लेखांकन तो जरूरी है. It is equally important in life of all the human beings. We must have proper record of our all financial transactions with different parties on different days, so as to eliminate and to remove all kind of doubts and queries. तो हिसाब किताब लेखांकन तो जरूरी है. ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर वेरियस मेथड ऑफ कीपिंग द बुक्स एंड अकाउंट्स फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस. तो इट विल बी इन माय नेक्स्ट वीडियो. फिर अभी हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप. तो आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स भी बनाए हैं और अब हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं. तो इन दोनों में आपको काफ़ी कुछ समानताएं नजर आएगी, लेकिन इनमें दोनों में बहुत अंतर है. तो ये क्या अंतर है, इसके लिए मैं आपको डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर जो समझा रहा हूँ, इसके लिए हम कुछ अंतर के आधार क्या हो सकते हैं वो ले रहा हूँ. तो these are the various basis of difference between partnership and joint venture business. सबसे पहला है नेम. नाम के आधार पे संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर हो सकता है. तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप which is a long time business, there is a specific name. A partnership firm is known in the market by its own name because it is for a long time. But in case of joint venture, there is no specific name because it is a short-term partnership, and there are so many business of one individual person with so many persons and for so many products. इसलिए इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है. Object. The main object of the partnership business is to continue it for a long time as a source of livelihood, and the object of joint venture is to carry on the business for a short time period till achievement of a particular goal and expiry of a particular time. इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है और साझेदारी में एक निश्चित हमारा निरंतर व्यवसाय होता है. नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन. In case of partnership, when there is a separate act, it is necessary to get the firm registered under the Partnership Act so as to avail so many facilities and privileges provided by the government to the partnership business. In case of joint venture, there is no need to get it registered. तो साझेदारी व्यवसाय के लिए पंजीयन कराना जरूरी है, लेकिन संयुक्त साहस व्यवसाय के लिए पंजीयन करवाना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट एक्ट. एक्ट मतलब अधिनियम, लॉ. तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज ए सेपरेट लेजिस्लेशन इन इंडिया विच इज नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. बट इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस देयर इज नो सेपरेट लेजिस्लेशन enacted by the government of India. So in case of joint venture there is no legislation. संयुक्त साहस व्यवसाय के लिए भारत में कोई अलग से अधिनियम नहीं है जो कि संयुक्त साहस व्यवसाय का रेगुलेशन कंट्रोल कर सके. Members. In case of partnership business, the minimum number of members is 2 and the maximum number may be 50, not more than that. Otherwise it will be considered as a private company. And in case of joint venture, the minimum number of members is 2, but for maximum number there is no limit. Depending on the nature of the business, the size and scope of functioning of business, there may be so many members in a joint venture according to the requirements. Next है number of members. नंबर ऑफ मेंबर में जब नंबर ऑफ मेंबर की बात करेंगे तो
मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 है पार्टनरशिप में, और इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर द नंबर मिनिमम नंबर इज 2 एंड मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये जो मेंबर्स हैं, तो जो पार्टनरशिप फर्म में जो लोग मेंबर होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? द मेंबर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज पार्टनर्स, and in case of a joint venture business the members are known as co-venture, ठीक है। तो मेंबर के आधार पर क्या लिखेंगे कि साझेदारी फर्म में जो साझेदार होते हैं, जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं ना, उनको साझेदार बोलते हैं, और संयुक्त साहस में जो लोग सदस्य होते हैं ना, उनको संयुक्त साहसी बोलते हैं, को-वेंचरर बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज रिलेशंस। In case of partnership business, there is a agency relation between or among the partner. In case of partnership firm, every partner is principal as well as agent for one another, for each other. And in case of joint venture, the relation is based on their mutual understanding. आपसी समझ पर ही आधारित उनके संबंध हैं। दे ऑल आर इक्वल, एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप दे आर इक्वल बट दे आर नोन एज प्रिंसिपल एंड एजेंट फॉर ईच अदर फॉर वन अनदर। तो ये उनकी रिलेशन है। तो साझेदारी फर्म में साझेदारों का जो संबंध है वो एजेंसी संबंध कहलाता है, और संयुक्त साहस में जो साहसियों के बीच में जो संबंध होता है वो आपसी समझ पर आधारित होता है। सो देयर इज ए रिलेशन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। सो टुडे इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट वेंचर, द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर एंड हाउ जॉइंट वेंचर इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें अब अकाउंटिंग के जो है ना, वो दो मेथड है बेसिकली, जैसे मैंने बोला ना अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। तो इसके दो मेथड है। पहला, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट मेंटेन, एंड दूसरा हो जाएगा सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन। तो ये कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन अलग अलग मेथड का वन बाय वन थ्रू एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी आज आपको जॉइंट वेंचर बिजनेस के बारे में सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से जानना है। थैंक यू वेरी मच, वॉच दिस वीडियो, share this video, keep your study continue. God bless you.